Hello, we are starting with a new chapter, that is application of definite integration. Now, application of definite integration has very large applications in science and engineering. In this chapter, we shall see the use of integration for finding what? The area of the bounded region. For this, we first draw the sketch, if possible, of the curve which encloses the region. For evaluation of area bounded by the certain curves, we need to know the nature of the curves and their graphs. The shapes of different types of curves are discussed below. We can say the first one is standard forms of parabola and their shapes. So we have the first one of parabola list as y square is equal to 4ax. Now we will see the diagram on the screen. So this is y square is equal to 4ax ka diagram. Now we have the second one, that is y square is equal to minus 4ax. Now we will see the diagram on the screen of y square is equal to minus 4ax ka parabola ka. Now the third type of parabola is x square is equal to 4by. So now you will see x square is equal to 4by ka parabola ka diagram. Next we have the fourth one in the list of parabola, it is x square is equal to minus 4by. So now you will see x square is equal to minus 4by ka parabola. So these are the different types of what? Parabolas ke different curves and the different values which are there, and accordingly the diagrams are drawn. So you can see the different list of diagrams of parabolas. Now we have the second condition as what? Different forms of ellipse. So we have the first ellipse is x square upon a square plus y square upon b square. That is a greater than b. If that is the case, ये कब होगा? जब a square will be greater than b square. अगर a square greater than b square है, इसका मतलब a greater than b है. Then the parabola का then the diagram of the ellipse will be of this type. So you can see this on the screen. Now we have ellipse based second category, that is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Where we have b is greater than a, or we can say a is less than b. दोनों का meaning same होता है. ये possible तब है जब a square is less than b square, or we can say b square is greater than a square. So now the diagram for that you can see on the screen. So ये हो गए ellipse के different types of diagrams. एंड इतना याद रखना है, एलिप्स का डायग्राम जब भी आएगा, यस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये अगर सेम होता है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम है, देन दैट एलिप्स विल बिकम व्हाट? इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दैट इज द रीजन ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ व्हाट? सर्कल. एंड नाउ you will see the diagram of circle on the screen. Now the next part is area under the curve. To find area under the curve, we state only formula without proof. So यहाँ पे proof का requirement नहीं है, we just have to understand the formulas. So we have the first one, the area A bounded by the curve y is equal to f of x, x axis and bounded between the lines x equal to a and x equal to b is given by a is equal to integration of a to b y dx, and ये y जो है it is a function of x. So उसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में a is equal to integration of a to b, y के जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऑफ f of x dx, एंड f of x आया मतलब वो फंक्शन ऑफ x हुआ, इसलिए dx आ गया, मतलब इंटीग्रेट करने वाले हैं f of x को with respect to dx. ये हो गया उसका मीनिंग. एंड नाउ यू विल सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन. नाउ एरिया अंडर द कर्व में वी हैव द सेकेंड पार्ट, दैट इज द एरिया A बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to g of y axis and bounded between the lines y is equal to c and y equal to d is given by A is equal to integration of c to d, यहां पे आ जाएगा x dy, एंड x जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? y.
So next case we can say a is equal to integration of c से लेके d g of y dy. And now you'll see the diagram on the screen. Now the third one is the area of shaded region bounded by two curves y equal to f of x, y equal to g of x as shown in the figure. So you can see this diagram. Now a is equal to modulus of integration of a to b f of x dx minus integration of c to d f of g of x dx. फर्स्ट वाले में f of x है, सेकेंड वाले में g of x है. Where the curve y is equal to f of x and y equal to g of x intersect at point a comma f of a and b comma f of b. So ये हो गया third condition. Now the next part is remark. In that we have the first one as if the curve under consideration is below the x-axis, then the area bounded by the curve x-axis and the lines x equal to a and x equal to b is negative. We consider the absolute value in this case. Thus, required area is equal to modulus of integration of a to b f of x dx. And now you'll see the diagram of that as well. Now in remark, we have the second condition. The area of portion lying above the x-axis is positive. And the third one as if the curve under consideration lies above as well as below the x-axis. Say A1 lies below the x-axis and A2 lies above the x-axis. Yes, you can see the diagram on the screen. Then A, the area of the region is given by A is equal to A1 plus A2. A1 is equal to modulus of integration of a से लेके t f of x dx and a2 is equal to integration of t से लेके b f of x dx. 7.1 question number 1. The main question is find the area of region bounded by the following curve, the x-axis and the given lines. In that we have the first one as y is equal to x raised to 4. X is equal to 1, x is equal to 5. So यहाँ पे we can say y is equal to x raised to 4. ये हमारा कर्व है, bounded by the x axis बोल दिया है, and the lines x equal to 1 and x equal to 5. So यहाँ पे लिखना होगा area of the region bounded by the curve x-axis and the lines is given by integration of, in general आ जाएगा as what, a to b. यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है और b का वैल्यू क्या है 5, y dx एंड इसी को डिनोट करेंगे एज व्हाट a. इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 5, y का वैल्यू क्या है x रेज टू 4. सो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 4 dx. सो x रेज टू 4 इज ऑफ द टाइप व्हाट x रेज टू n एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, तो उसका आंसर होता है एज व्हाट x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 1 मतलब x रेज टू 5 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 5, 1 से लेके 5. सो ये 1/5 बाहर आ जाएगा. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5. सो दिस इज इक्वल टू 1/5 इन द ब्रैकेट 5 रेज टू 5 मतलब ये हो जाएगा 5 5 are 25, 25 इंटू 5 किया तो 125, 125 इंटू 5 किया तो 625, 625 इंटू 5 किया तो हो जाएगा 3125 माइनस 1 रेज टू 5, तो इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है. सो ये हो गया 1/5 इंटू 3124.
सो ये हो जाएगा 3124 अपॉन 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया मेरा एरिया का वैल्यू। फोर्थ सब क्वेश्चन विच सेज 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8। नाउ 2y इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया है, हमें चाहिए y का वैल्यू। सो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x प्लस 7 अपॉन 2। Again it is find the area of the region bounded by the curve, x-axis and the lines. So A is equal to integration of y dx, ये फिक्स है, इधर आ गया 2, इधर आ गया 8। So यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 8, ये y के जगह पे आ जाएगा 5x प्लस 7 डिवाइड बाई 2 dx। यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, सो वी से 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 8 5x प्लस 7 dx 1/2 इंटीग्रेशन ये टर्म को सेपरेटली, इंटीग्रेशन ये टर्म को सेपरेटली, बट यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बट फंक्शन के साथ है तो 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया 2 से लेके 8 प्लस 7 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा 2 से लेके 8, ये आ गया 1/2, ये आ गया 5, इधर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2, इधर आ जाएगा 2 से लेके 8 प्लस 7, ये आ जाएगा x 2 से लेके 8, ये 1/2, ये 5 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो गया 7 ब्रैकेट 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 1/2, ये 5 इन द ब्रैकेट 8 स्क्वायर मतलब 64 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 7 इंटू ये 6 हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 5 इन द ब्रैकेट 32 माइनस 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7 6 42 1/2 5 इंटू 30 आ गया प्लस 42 1/2, ये हो गया 150 प्लस 42, ये हो जाएगा 1/2 192 डिवाइड बाई 2 किया तो ये हो जाएगा 96, इधर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4 is done. We make a note of this. Seventh, it is y is equal to 2 minus x square, x equal to minus 1, x equal to 1. A is equal to integration of y dx आ गया, इधर -1 से लेके क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ब्रैकेट में dx, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 dx आ गया, ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 1 एंड लिमिट से -1 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, इधर आ गया -1 से लेके 1, सो ये आ गया 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा x, ये -1 से लेके 1, ये हो गया x क्यूब अपॉन 3, ये हो गया -1 से लेके 1, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 1/3 बाहर, 1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का क्यूब, सो दिस इज 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, ये 1/3 हो गया, दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, सो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1/3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 4 माइनस ये 1/3 इंटू 2 हो जाएगा, सो 4 माइनस 2/3, सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा 7th सब क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ
in this session we'll be seeing few questions based on what parabolas. So यहाँ पे हमारे पास curve defined रहेंगे. So when you have parabola, ellipse or circle, in this case you need to draw the diagrams. यहाँ पे diagram draw करना important case हो जाता है. So over here second question is find the area of region bounded by the parabola y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. So यहाँ पे it is clearly mentioned it is the parabola. So y square is equal to 4x वाला parabola है. So your diagram over here will be so this is the curve of y square is equal to 4x वाला. Now and the line बोला था. So ये origin पे हुआ. So one of the point is origin that is 0 है and second वाला दिया है x equal to 3. So यहाँ पे हम लिख देंगे as this is x which is equal to what 3. So ये origin वाला point है. This is point we can say A. इसका coordinate 3,0 है. This is one of the point that is B and ये O है. So over here we can write it is y square is equal to 4x दिया है. Now since it is y square is equal to 4x and यहाँ पे question में बोला है find the area of region bounded by the parabola and the line. Now about कौन सा axis ये कुछ बोला नहीं है. So if none of the axis is mentioned then by default it is about the x axis. अगर कोई भी axis बोला नहीं है then by default axis is what? It is about the x axis. So यहाँ पे y square is equal to 4x है. So अगर about x axis है तो मुझे वैल्यू चाहिए रहेगा किसका y का वैल्यू. हमारे पास y स्क्वायर का वैल्यू है. So we write y is equal to plus minus under root of 4x. So y is equal to plus minus root 4 तो ये हो जाएगा 2 and ये हो जाएगा root x. Now अगर ये पैराबोला देखते हैं तो यहाँ पे इतना जो एरिया है वही सेम एरिया यहाँ पे है. द ओनली थिंग इज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. इसमें क्या होता है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. इसमें x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. बट सिंस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट एरिया पार्ट एंड एरिया कैन नॉट बी व्हाट नेगेटिव. सो अगर एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो वी नीड टू कंसिडर व्हाट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट. So considering इसको and इसको ये दो पार्ट को अलग अलग उससे अच्छा what do we write? We write O A B O origin to origin and ये पार्ट को शेड कर देंगे and we say इसका डबल कर देंगे. Why double? Because this is symmetrical to this part. But the only thing is what? Since ये related to area है तो we consider the absolute value. मतलब we consider the modulus value ignoring the negative sign. So इसलिए इसका जो एरिया है उसको क्या कर देंगे डबल. सो वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बाय सिमेट्री ऑफ पैराबोला. एंड यहाँ पे सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आफ्टर दिस वी राइट y इज इक्वल टू 2 रूट x और यहाँ पे लिखेंगे सिंस y इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0 क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हैं एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों भी क्या होता है पॉजिटिव. सो इसलिए यहाँ पे लिखा y इज ग्रेटर देन 0 तो ये माइनस वाला टर्म जो है वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. सो ये वैल्यू आ गया. नाउ वी राइट यहाँ पे एरिया. सो हम लिख देंगे एज व्हाट a इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन O A B O. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 0 से लेके 3. अच्छा y 0 to 3 क्योंकि ये ओरिजिन का पॉइंट है तो 0 एंड द लाइन बोला है एट व्हाट 3. सो 0 से 3 इज द लिमिट. यहां पे आ गया y dx एंड ये 2 टाइम्स लिखने का रीजन है तो यहां पे लिखेंगे बाय सिमेट्री ऑफ पैराबोला. So 2 times integration 0 to 3 ये y के जगह पे आ जाएगा 2 रूट x dx. ये 2 भी बाहर चला जाएगा तो ये 2 2 सा ये आ जाएगा 4. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3
रूट एक्स डी एक्स. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 एक्स रेज टू हाफ dx. एंड नाउ यहां पे एक और चीज समझ रहा है, ये 2 टाइम्स है जो यहां पे लिखा बाय सिमेट्री ऑफ पैराबोला. सो दैट इज द रीजन विल शेड ओनली व्हाट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट. एक्चुअल में ये पूरा रीजन होता है, बट सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है हमने यहां पे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रीजन. एंड वो 2 टाइम्स क्यों लिखा है, सी ये 2 रूट एक्स अलग है और ये 2 जो है वो अलग है. 2 रूट एक्स 2 अलग अलग कंडीशन है. एंड वो किस लिए है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो वो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये हो गया 4. एक्स रेज टू एन जैसा है तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2. यहां पे आ जाएगा 0 से लेके 3, ये अपॉन वाला टर्म यहां पे चला जाएगा तो 2 into 4 अपॉन 3. एक्स रेज टू 3/2 0 से लेके 3. सो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. ये हो जाएगा 3 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2. 8 अपॉन 3. 3 रेज टू 3/2 तो 3 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. सो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. एंड फिर क्या करेंगे, उसका क्यूब. सो √3 इंटू √3 विल गिव मी व्हाट, 3 एज द वैल्यू इंटू √3. तो ये हो जाएगा 3√3. सो यहां पे आ गया 3√3 माइनस 0. 8 अपॉन 3 इंटू 3√3. 3 क्या होगा, कैंसिल. तो यहां पे क्या बचा, 8√3 स्क्वायर यूनिट्स. सो यहां पे विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का रोमन 4 का क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x square, the x axis and x equal to 1, x equal to 4. So यहाँ पे the question is y is equal to x square and the x axis बोला है and x equal to 1 and x equal to क्या आया, 4. Now since it is y is equal to x square, that is same as what, x square equal to y. So again this is a parabola. So ये x है, this is x dash, ये y dash, ये y हो गया. Now ये आ गया है y equal to x square, that is same as x square equal to y. And since ये x square equal to y है, इसलिए इस टाइप का डायग्राम बना है. But the values it is for x equal to 1. अच्छा ये है x equal to 0 होता है, तो 1 somewhere यहाँ पे आएगा, यहाँ पे. This is 1, फिर इधर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है. So यहाँ पे somewhere it is. So ये लिखेंगे x equal to 1, ये लिखेंगे x equal to 4. एंड सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो शेड होगा. एंड यहां पे क्लियरली बोला है इट इज अबाउट, क्या दिया है, द एक्स एक्सिस. सो वी राइट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. y इन टर्म्स ऑफ x है एंड यहां पे लिमिट्स भी x के ही है. सो वी राइट 1 से लेके 4. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 इधर आ जाएगा x स्क्वायर dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मतलब ये हो गया x रेज टू n जैसा. सो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3. यहां पे आ जाएगा 1 से लेके 4. ये हो गया 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3. 4 क्यूब हो जाएगा 64 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 अपॉन 3. दिस इज 64 माइनस 1 अपॉन 3. फिर यहां पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 63 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 21. ये हो गया एरिया का वैल्यू स्क्वायर यूनिट्स. सो यहां पे विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. मिसलेनियस एक्सरसाइज रोमन 4 का क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व
x square is equal to 25y, y is equal to 1, y is equal to 4 and the y axis. So यहाँ पे mentioned it is about what? The y axis. Now the curve over here is x square is equal to 25y. So again this is a parabola of the type. So यहाँ पे ये आ गया x square is equal to 25y, ये उसी का कर्व है एंड साथ में दिया है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू व्हाट 4. ये ओरिजिन होता है, इसके ऊपर जस्ट वी कैन से दिस इज y इक्वल टू 1 एंड उसके थोड़ा सा और ऊपर ये हो जाएगा y इक्वल टू 4. सो दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 4, दिस इज ओरिजिन. एंड नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 25y है. इधर क्लियरली बोला है कि यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, बट अबाउट क्या बोला है? अबाउट द y एक्सिस बोला है. सो नाउ दिस इज द y एक्सिस. सो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज x डैश, दिस इज y डैश एंड दिस इज y. सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा हुआ. सो इतना जो रीजन है एग्जैक्टली आइडेंटिकल इज दिस. सो वी कैन से बाय सिमेट्री आएगा यहां पे भी इन दिस केस ऑल्सो. सो यहां पे वी राइट एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस पैराबोला का कंडीशन, इतना पार्ट. सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा x dy एंड यहां पे लिमिट तो है 1 से लेके 4. नाउ सिंस ये 2 टाइम्स ऑफ x dy लिखा तो वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट x फर्स्ट. यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू है तो वी राइट x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा 25y. सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इक्वल टू 4 है. नाउ दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y बोला है. सो वी शुड हैव वैल्यू ऑफ व्हाट x. सो x इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 25y और यहां पे क्या आएगा प्लस माइनस. सो ये हो जाएगा 5 क्योंकि रूट 25 5 होता है एंड ये हो गया रूट y, यहां पे आ गया प्लस माइनस, ये आ गया x का वैल्यू. सो x इज इक्वल टू 5 रूट y आ जाएगा. यहां पे हम लिखेंगे सिंस y इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0. नाउ सिंस y इज ग्रेटर देन 0 इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इधर y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू क्या है 4. बट इट इज सिमेट्रिकल है एंड ये y एक्सिस बोला है अबाउट y एक्सिस. सो ये पार्ट का जो भी वैल्यू आया उसको क्या कर देंगे डबल. सो वी राइट यहां पे एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन लिखेंगे. दैट मीन्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इधर आ गया 1, यहां पे आ गया 4, 5 रूट y dy. ये 2 इंटू 5 यहां पे आ जाएगा 10 इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 रूट y dy. यहां पे लिखते वक्त लिखेंगे a इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 4 y रेज टू हाफ dy. इधर आ गया 10 इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. यहां पे आ गया 1 से लेके 4, ये अपॉन वाला टर्म यहां पे गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 3 y रेज टू 3/2 1 से लेके 4. ये हो गया 20 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2. 20 अपॉन 3, 4 रेज टू 3/2 का मतलब है पहले 4 का रूट लो, दैट इज रूट 4, that gives me 2 as the value. 2 raised to 3 है, 2 raised to 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8. 1 का रूट इज 1 एंड 1 का क्यूब इज 1. सो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 7. 27 ये हो जाएगा 140 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. सो यहां पे with this question is that we make a note of this part. Miscellaneous exercise का रोमन 4 का क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 7x and x square is equal to 7y.
सो यहां पे पैराबोला आ गया y स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y. सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x को मार्क कर दिया एज 1. x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y है, तो वी कैन राइट x स्क्वेयर अपॉन 7 इज इक्वल टू y एंड वी मार्क दिस एज व्हाट 2. सो यहां पे y स्क्वेयर इक्वल टू 7x आ गया, x स्क्वेयर अपॉन 7 इज इक्वल टू y आ गया. एंड यहां पे क्लियरली इट इज मेंशन कि वी नीड टू फाइंड एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वेयर इक्वल टू 7x एंड x स्क्वेयर इक्वल टू 7y. सो यहां पे दो पैराबोलास ड्रॉ हो गए. सो यहां पे ये x आ गया, ये x डैश आ गया, ये o आ गया, दिस इज y डैश आ गया, ये y आ गया. ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कहने से ये दो पैराबोलास का इंटरसेक्शन पॉइंट है. सो फॉर दैट यहां पे हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 7x है एंड x स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू y है. सो वी कैन से पुट y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 7 इन 1. तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. सो ये हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 49 इज इक्वल टू 7x. x रेज टू 4 अपॉन x इज इक्वल टू 7 इंटू 49. सो ये हो गया x क्यूब एंड ये हो गया 343. सो x क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब. अच्छा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर यही वर्किंग वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, यहां पे पहले लिख देंगे x रेज टू 4 अपॉन 49 इज इक्वल टू 7x. x रेज टू 4 इज इक्वल टू 49 इंटू 7x आ जाएगा. x रेज टू 4 इज इक्वल टू 343x. x रेज टू 4 माइनस 343x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0. फर्दर यहां पे लिख सकते हैं एज व्हाट, x कॉमन, तो x क्यूब माइनस 343 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 7 क्यूब इज इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब. सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7. यहां पे क्यूब था ना, तो क्यूब रूट ले लिया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7. सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या आ गया, 7. सो आई राइट ओवर हियर कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे y का वैल्यू क्या आएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 0. व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू, नाउ x का वैल्यू अगर 7 है तो 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 जा आ जाएगा. सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7. सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज 7,7 आ जाएगा एंड यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा एंड वी से लेट दिस पॉइंट बी व्हाट, D. ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा, B. सो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा एज व्हाट, A, और ये पॉइंट आ जाएगा एज व्हाट, B. सॉरी, C. B तो ऑलरेडी यहां पे मार्क्ड है और इसको हमने नाम दे दिया एज व्हाट, D. यहाँ पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है टू व्हाट, यहाँ पे O एंड ये x एक्सिस पे है. सो ओवर हियर वी आर राइटिंग इट एज व्हाट, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू OD ऑन द x एक्सिस बोला है, ये आ गया. एंड यहां पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the parabolas is 7,7. ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड हमें यहाँ पे क्लियरली बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस टू पैराबोलास. सो दिस टू पैराबोलास के बीच का एरिया मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा. सो यहां पे वी राइट द रिक्वायर्ड
एरिया इज इक्वल टू, सो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ, सो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये ओ डी बी सी ओ मतलब ये वाला पैराबोला हुआ, ये वाला पैराबोला मतलब यहां पे क्या आएगा, इट इज एरिया अंडर द कर्व y square equal to 7x माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ, तो ओ डी बी ए ओ मतलब ये वाला पैराबोला हुआ, सो यहां पे लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व x square is equal to 7y, सो यहां पे ये वैल्यूज मिल गए हमको, एरिया अंडर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 7x है, बट सिंस यहाँ पे अबाउट x एक्सिस का कंडीशन लेना है, सो वी राइट इट एज व्हाट 0 to 7 हो जाएगा, एंड ये y स्क्वायर है ना, तो हमें y का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लिखते वक्त यहाँ पे क्या लिखते हैं y dx माइनस इधर भी आ जाएगा 0 to 7, यहाँ पे भी हम लिखते वक्त क्या लिखने वाले y dx, बट यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 7y, सो इधर ये हो गया 0 to 7, अभी y का वैल्यू चाहिए, ये y स्क्वायर का वैल्यू है, y स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो y इक्वल टू क्या आएगा √7x, एंड कैन आई से दिस लाइज इन व्हाट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यहां पे लिखते वक्त हम लिखने वाले हैं √7x dx, यस यहां पे रीजन लिखेंगे सिंस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस यहां पे अभी x स्क्वायर इक्वल टू 7y है, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 7, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या आएगा 7, इधर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 7 dx, सो दिस इज इक्वल टू √7 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 √x dx आ गया, माइनस 1/7 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 x स्क्वायर dx आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ये √7 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 ये x रेज टू हाफ हो गया dx माइनस ये 1/7 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा x³ अपॉन 3, 0 एंड 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे एज व्हाट √7 आ गया, यहाँ पे x रेज टू हाफ का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, सो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा, सो x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, इधर आ गया 0 से लेके 7 माइनस ये 1/7 है, यहां पे आ जाएगा 7 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ये अपॉन वाला 2 यहां पे आ गया, तो 2√7 अपॉन 3 द ब्रैकेट 7 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 माइनस दिस इज 1/7, ये हो जाएगा 343 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3, 2√7 अपॉन 3, 7 रेज टू 3/2 का मतलब होता है 7 का रूट एंड उसका क्यूब, 7 का रूट मतलब √7 उसका क्यूब, तो √7 इंटू √7 इज 7 इंटू √7 इज 7√7, सो 7√7 आ गया माइनस 0 माइनस ये हो गया 1/7 इंटू 343 अपॉन 3 एंड ये तो 0 हो जाएगा, सो यहां पे 2 7 14, √7 इंटू √7 ये हो जाएगा 7, सो 14 इंटू 7 किया तो ये हो जाएगा 98 अपॉन क्या आएगा 3 माइनस 7 1 7 49,
सो 49 अपॉन क्या आएगा 3. सो दिस इज इक्वल टू 98 माइनस 49 अपॉन क्या आएगा 3. दिस इज इक्वल टू 49 अपॉन 3. ये आ गया वैल्यू ऑफ व्हाट ए, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया को हम लिखेंगे एज व्हाट ए. तो ये ए का वैल्यू आया 49 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. So with this question is done. We make a note of this part. We have the first question, that is from exercise number 7.1. Question number 3. Find the area of circle x square plus y square is equal to 25. Now यहाँ पे इक्वेशन दिया है x square plus y square is equal to 25. अब ये x square plus y square is equal to 25 है, that means ये x square plus y square is equal to a square जैसा है. And over here we have value of a square as what 25. अगर a square का वैल्यू 25 है तो a का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5. So over here now area of circle बोला है, यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन नहीं दिया, इट इज अबाउट y एक्सिस या अबाउट x एक्सिस या कोई भी कंडीशन. So if nothing is mentioned, so by default it goes about what? About the x axis. So here we write y square is equal to 25 minus x square. We write it as y is equal to plus minus under root of 25 minus x square. Y is equal to under root of 25 minus x square. यहाँ पे again it will be what? Y will be greater than 0, इसलिए वो नेगेटिव वाला पार्ट चला गया. So over here ये जो वैल्यू मिला, we can write it as y is equal to under root 5 square minus x square. And since it is x square plus y square is equal to 25 है, कोएफिशिएंट ऑफ x square और y square दोनों भी क्या है? इक्वल है, and that is what 1 है. इसलिए यहाँ पे we need to draw what? A circle over here. So यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है. So यहाँ पे ये आ जाएगा x, this is x dash, ये हो गया y, ये हो गया y dash. Center point is origin, this is point A, and ये आ गया point B. Now ये point is on x axis, तो ये हो जाएगा a, 0. बट यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू क्या था 25, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5. So ये हो गया 5, 0. This is point on y axis, तो ये हो जाएगा 0, 5. Now इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू विल बी व्हाट सेम. बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, और यहाँ पे y नेगेटिव है. सो वी कंसिडर ओनली व्हाट? ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो हम क्या करेंगे? वी फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर रहा हूं. एंड इसका जो वैल्यू है वी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 4. सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया के लिए A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन OABO. सो यहां पे आ जाएगा इट इज 4 टाइम्स आ गया, एरिया इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx आ जाएगा. एंड यहाँ पे द लिमिट विल बी, ये 0 से लेके ये 5 है. So it is lower limit is 0 and upper limit क्या आएगा 5. So in general whenever you have your कौन सा इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन है. your limit will be from origin है इसलिए 0 to ये पॉइंट है 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 है. So a, 0, तो 0 to a उसका लिमिट आ जाएगा. So we write this is equal to, ये हो गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5. y की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dx. सो a इज इक्वल टू, ये हो गया 4, ये हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बड़ा वाला फॉर्मूला आ जाएगा विच इज x अपॉन 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. फिर आ जाएगा a स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 5. एंड यहां पे आ जाएगा लिमिट दैट इज 0 टू व्हाट 5. एंड यहां पे a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो यहां पे प्लस आ जाएगा. ये हो गया 4
अपर लिमिट आ जाएगा 5/2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5 माइनस इट इज 0/2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फिर ये भी आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट कर रहे हैं तो माइनस साइन इसको भी जाएगा, और ये प्लस है बट यहां पे बीच में माइनस साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा. दिस गिव्स मी 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/5. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 4, ये आएगा 5/2 इंटू 0, क्योंकि 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा रूट के अंदर, ये जीरो हो गया. दिस इज 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 इंटू दिस विल गिव मी 0, एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या देगा 0. सो 25/2 इंटू क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 आ गया पहले तो. सो नेक्स्ट वी हैव, ये आ गया 4, दिस इज 0, ये 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 1, तो हमने सीखा था कि साइन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो हो जाएगा क्या π/2, फिर हो गया 0 एंड ये भी आ गया एज व्हाट 0. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 4 इन द ब्रैकेट, ये हो गया 25 पाई अपॉन क्या आएगा 4, ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ये है हमारा एरिया ऑफ व्हाट सर्कल. सो इन जनरल वी कैन से अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अगर होता है देन द एरिया ऑफ सर्कल विल ऑलवेज बी, वो हो गया पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये पाई हुआ और ये आर स्क्वायर मतलब रेडियस होता था, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो भी पॉइंट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को बीट करता है, तो दिस 0 to a over here act as your radius. So x square plus y square is equal to a square बोलो या x square plus y square is equal to r square बोलो, it is one and the same. But over here in general हम बोल रहे x square plus y square is equal to a square. And यहाँ पे shortcut में we can say area of circle will always be what? a square pi square units. a square pi square units. So a square मतलब phi का square 25 pi square units. So with this question number 3 is done. We make a note of this part. So here it says find the area of ellipse x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. So यहाँ पे लिखेंगे question number 4. It is x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. So x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. ये हो गया x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. a square और b square का वैल्यू अलग अलग है. So यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x square और कोएफिशिएंट ऑफ y square सेम नहीं होगा. So this is finding what area of ellipse. And क्वेश्चन में यहाँ पे तो मेंशन करके भी दिया है, बट इन केस अगर क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया है देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोएफिशिएंट ऑफ x square एंड कोएफिशिएंट ऑफ y square अलग अलग है, इसलिए ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं बल्कि एरिया ऑफ क्या आएगा एलिप्स आएगा. नाउ अबाउट कोई भी एक्सिस नहीं दिया है, सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी अबाउट क्या आएगा. अच्छा बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझने से पहले इट इज x square अपॉन a square प्लस y square अपॉन b square इज इक्वल टू 1. यस, सो इधर हम लिखते वक्त लिखेंगे एज व्हाट, ये हो जाएगा y square अपॉन व्हाट 25 इज इक्वल टू 1 माइनस x square अपॉन क्या आएगा 4. ये हो जाएगा 4 माइनस x square अपॉन क्या आएगा 4. ये हो गया y square अपॉन 25. सो y square इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस x square आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस क्या आएगा x square. सो ये हो गया y का वैल्यू. नाउ अगेन यहाँ पे दिस इज फाइंडिंग व्हाट एरिया ऑफ एलिप्स. तो यहाँ पे एलिप्स का डायग्राम ड्रॉ करना होगा. नाउ यहाँ पे एलिप्स का ये वाला डायग्राम आएगा. नाउ व्हाई दिस डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू छोटा है, सो a इज स्मॉलर, सो दिस इज योर माइनर एक्सिस एंड दिस इज योर मेजर एक्सिस, क्योंकि 25 बड़ा नंबर है, सो दिस इज अ मेजर एक्सिस. सो ये सेंटर पॉइंट को बोलेंगे एज O, ये A हुआ, ये B हुआ,
अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये वाले पार्ट का रीजन ढूंढेंगे एंड वी मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट 4, क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या है 4 एक्सिस। एंड ये क्या किया, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर किया, तो यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर सिंस y इज ग्रेटर देन 0। सो ये वैल्यू मिल गया। नाउ वी राइट ओवर हियर एज व्हाट, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OABO एंड यहां पे लिखेंगे इट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a आ जाएगा। अच्छा, अबाउट कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट x एक्सिस, एंड यहाँ पे x एक्सिस के लिए द कोऑर्डिनेट इज 2,0 एंड इधर ये कोऑर्डिनेट है 0,5। सो यहाँ पे 0 to 2 ये मेरा लिमिट हो गया, ये 4 आ गया, यहाँ पे y dx आ गया। यहाँ पे रीजन आना चाहिए बाय सिमेट्री ऑफ एलिप्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 4 into 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 जा, ये क्या आएगा 2 सा, 2 into 5 क्या हो जाएगा 10 इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 10 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2, लिमिट आ गया 0 से लेके 2। राइट, a इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 10 ब्रैकेट, यह आ जाएगा अपर लिमिट 2/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस ये हो गया 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/2। अच्छा, बट इधर बाहर आ जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट। सो ये आ गया 10। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये 2/2 ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 into 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 4/2 मतलब ये 2 हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। सो दिस इज इक्वल टू, ये 10 आ गया, दिस इज 0, 2 into pi/2 0, 2 टाइम्स ऑफ 0, ये आ गया 10, ये और ये कैंसिल, तो 0 प्लस पाई, तो ये पाई आ गया माइनस 0। सो ये आ गया 10 पाई स्क्वेयर यूनिट्स, ये है एरिया का वैल्यू। सो एरिया इज इक्वल टू 10 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आ गया। नाउ वी गॉट एरिया ऑफ व्हाट, एलिप्स। सो यहाँ पे एक शॉर्टकट बोल सकते हैं फॉर एरिया ऑफ फाइंडिंग व्हाट, एलिप्स। सिंस ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसे एरिया ऑफ एलिप्स जो है उसका आंसर होता है हमेशा पाई ए बी। यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू 4 है, सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड b स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सो पाई ए बी, तो पाई इंटू 2 इंटू 5, 2 5 10 हो गया, 10 इंटू पाई 10 पाई आ गया, तो 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स आ गया। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, finding the area of this ellipse. So with this question is done. We make a note of this part. And with this, we also end the chapter over here. See you in the next lecture with the next chapter. Thank you.